Welcome our guest. Have a seat. Once you replace negative thoughts with positive ones, you will start having positive results. With this wonderful thought, I welcome today's guest, Principal Sir, teachers, and all my dear students. I am Dr. Pushpa Zamakar, Assistant Professor, wishing you all a very good morning. Our today's guests are with us. I request them to light the lamp and give cruel tribute to Dr. Panjabrao Alias Bhausaheb Deshmukh, Rashtrasan Tukadoji Maharaj, and Mata Saraswati. Sure. I request our today's guests to engross their seat on the desk. I request our today's guests to engross their seat on the desk. I request you all to stand in honor of Vidyapeeth Geet followed by Swagat Geet. सूदे देवर शिवसाने हे सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसूदे मतभेद नसूदे या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे देवर्षि असादे नांदोत सुखी गरीब अविर एक मतानी मग हिंदू असो ख्रिश्चन बाहू इस्लामी स्वातंत्र्य सुखाया सकला माझी वसुदे देवर्षि असादे या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे देवर्षि असादे सकळा सकळो मानवता राष्ट्र भावना हो सर्व स्थळी मिळुनी समुदाय प्रार्थना उद्योगी तरुण वीर शीलवान दिसुदे देवर्षि असादे या भारतात बंधु
नित्य वसुदेव देवर्षि असारे हा जाती भाव विसरुनिया एक हो आम्ही अस्पृश्यता समूळ नष्ट हो जगातुनी हरलिंग कामनी ही सत्य न्याय वसुदेव देवर्षि प्रसादे या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदेव देवर्षि प्रसादे सौंदर्य रघु घरात स्वर्गीया परी ही नष्ट होऊ दे विपत्ती भीती मोहरी तुकड्यास सदा सर्वदा सेवेद वसुदे देवर्षि असादे या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे देवर्षि असादे हे सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसुदे मतभेद नसुदे या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे देवर्षि असादे देवर्षि असादे देवर्षि असादे Kindly take a seat. शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम नित प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम नित्य निरंतर दानवता मानवता समता ममता नित्य निरंतर दानवता मानवता समता ममता सारथी साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता सारथी साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता संकल्प अविजित अभिमतम संकल्प अभिजित अभिमतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम प्रीत प्रिय भारत भारतम प्रीत प्रिय भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अर्थ स्वागतम शुभ स्वागतम कुसुमित नई कामनाए सुरभित नई साधनाए कुसुमित नई कामनाए सुरभित नई साधनाए मैत्रीवत क्रीड़ांगण में प्रमुदित बंधु भावनाए मैत्रीवत क्रीड़ांगण में प्रमुदित बंधु भावनाए शाश्वत सुविकसित इति शुभम शाश्वत सुविकसित इति शुभम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम हित प्रिय भारत भारतम हित प्रिय भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अभि स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रिय भारत भारतम नित प्रिय भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम After this wonderful Swagat Geet, I ask permission of the chair to start the proceeding. In the first place, I pay my humble homage to our founder president and first agriculture minister, late Dr. Punjab Rao Alais Bhavsar Deshmukh, Rashtrasamit Tukadoji Maharaj, and Goddess of Knowledge, Mata Saraswati. Today is the second day of SIP 24-25. We have already completed day first successfully. As you all know, we all gathered here to celebrate second day of SIP 24-25, and to enlighten today's program we are having famous personality, that is Professor Raja Akash sir.
I request Dr. O.S. Deshmukh sir to welcome our guest with offering a flower talking tree sapling. Thank you so much, sir. Now I request Professor Anwane sir to welcome Principal Dr. O.S. Deshmukh sir by offering talking tree sapling. Thank you so much, sir. Now I request Dr. Shilpa Geda madam to welcome Professor S.W. Anwane sir by offering talking tree sapling. Moving towards, I request Dr. Pooja Tarde madam to welcome and give brief introduction of our guest. Good morning, everyone. It is my honor to introduce Professor Raja Akash sir, a distinguished consultant psychologist with over 4 decades of experience in transforming lives. His incredible journey in the field of psychology has touched the lives of more than 5 lakh students through his workshops, guiding them with simple yet profound technique to build awareness, responsibility, and mental well-being. Born on January 14, 1966, Professor Akash Sir earned his master degrees in psychology, where he was the top graduate from Amravati University. His passion led him to work with renowned institutes like Muktangandi Addiction Center, the Institute of Mental Health Pune, and later as a consultant psychologist in Mumbai. Throughout his career, he has contributed significantly to a broad spectrum of areas from drug de-addiction, rural development, and women and child welfare to career guidance and adolescent counseling. Professor Akasa firmly believes that children are the most valued asset into a family and a nation. His work focuses on making both parents and children aware of their roles and responsibility in education and health. His extensive contribution includes publishing over 450 articles in national newspaper and delivering impactful training sessions in esteemed organizations like LIC, Mahindra and Mahindra, Larsen, and Togo, and government institutes. Professor Akash is now expanding his reach by helping people throughout online platforms such as YouTube, Facebook, Instagram, and many more, aiming to improve mental health on a wider scale. Sir is also affiliated with numerous renowned institutes as a faculty member, and he has also provided HRD training and stress management programs to thousands of professionals, public prosecutors, and government employees. His experience includes working as a clinical psychologist at the Central Institute of Mental Health Pune and as a consultant psychologist with various clinics across Mumbai. He has also headed departments at Savitri Jyotirao College of Social Work and served as a principal at the Institute of Training and Research Nagpur. With vast experience in HR development and stress management, Sir has trained thousands of professional public prosecutor and students across various sectors. Professor Akash's dedication to enhancing the mental well-being of society, coupled with his contribution to education, health, and social development, has made him a respected figure in the field of psychology. We are very privileged to have you with us, sir, today, and I request, sir, to please address our esteemed gathering. आदरणीय प्राचार्य देशमुख सर, आदरणीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनवाणी सर, यहाँ पे सारे
जो प्रोफेसर्स हैं, शिवाजी साहब कॉलेज के सारे प्रोफेसर्स, और अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे लिखा है फिजिक्स, जूलॉजी, मैथ्स और साइंस, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट्स हर 2-3 साल में मोस्टली हर साल ही यहाँ पे मुझे बुलाया जाता है, और मुझे खुशी होती है कि मैं आप लोगों से बात करता हूँ। 10th तक पूरी फीडिंग होता था। आपके मम्मी पापा आपके पीछे डंडा लेके बैठते थे, चल पढ़, ऐसा कैसा नहीं पढ़ता। तो उसके बाद 11th 12th में आपकी जिम्मेदारी किसी कोचिंग क्लास पर डाल दी, वो डंडा लेके बैठ, उन्होंने स्कूल फीडिंग किया, तेरे को यही पढ़ना है, ऐसा ही पढ़ना है, इसी तरह से पढ़ना है। अब ये डंडा आपके ऊपर नहीं रहा, क्योंकि अब आप सीनियर कॉलेज, और सीनियर कॉलेज में आने के बाद ये डंडा जो है ऊपर का ये गायब हो जाता है, और ये गायब होने के बाद फिर अपनी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि भैया अब अपने सारे के सारे कंट्रोल अपने खुद के हाथ में लो। 10th है, 12th है, वहां पे आपका सिलेबस कंप्लीट करने की जो जिम्मेदारी होती है, ये होती है टीचर्स पर। लेकिन जब आप सीनियर कॉलेज में आते हो तो ये जिम्मेदारी वैसे है प्रोफेसर लोगों की, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी सीनियर कॉलेज में होती है, या आप में से बहुत सारे लोग कैजुअली लेते हैं, कॉमन बंक करते हैं, इसलिए वो सिलेबस सीनियर कॉलेज में कंप्लीट नहीं हो पाता। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, बहुत सारी ऐसी बातें कि वो नहीं हो पाता। ये मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, जब मैं खुद भी सीनियर कॉलेज में था, या हमारे यहाँ के प्रोफेसर भी जब सीनियर कॉलेज में थे, तो दे कैन रियलाइज कि जैसा 11th 12th पे वो जिम्मेदारी टीचर की होती है, और बाय हुक और क्रुक वो कर ही लेते हैं, ये सीनियर कॉलेज में नहीं होता। नॉट ओनली इवन इन साइंस कॉलेज, किसी कॉलेज में नहीं होता, वो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कॉमर्स कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, साइंस कॉलेज हो, या कोई भी कॉलेज हो, वो कंप्लीट नहीं हो पाता। मतलब ये जो जिम्मेदारी है, ये हमको खुद को संभालनी पड़ती है। इसका रियलाइजेशन इस प्रोग्राम के जरिए मैं देना चाहता हूँ। सो बी अलर्ट, इट इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट योर सिलेबस इन टाइम। जब मैं पढ़ाई करता था, मैंने भी पहले बीएससी किया है, तो हमारे समय ईयरली सिस्टम थी, यानी साल में एक ही एग्जाम होती थी। अब आपकी हाफ ईयरली है, यानी सेमिस्टर सिस्टम आई हुई है, तो आपका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। दूसरी और एक चीज रियलाइज करा देना चाहता हूँ, जो आज के सोसाइटी में इंडिया में चल रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। अब अनएम्प्लॉयड कौन रहता है? क्या हम भी उसी फौज का एक हिस्सा बनना चाहेंगे, या कुछ अलग करना चाहेंगे? आपको अपने सिलेबस के साथ साथ अलग अलग स्किल्स डेवलप करने होंगे, अपनी एबिलिटी बढ़ानी होगी। मैं VNIT में एक बार मुझे बुलाया था, वहां पे मॉक इंटरव्यू होते हैं। कैंपस इंटरव्यू को पहले वहां पे एक मॉक इंटरव्यू, मॉक ट्रायल लिए जाते हैं, ताकि जो भी बच्चे इंटरव्यू को फेस करने वाले हैं, उनको प्रैक्टिस हो जाए। तो वहां पे पैनल जो मुझे हमेशा बुलाते, जब मैं ये पैनल पे था तो कुछ ऐसी कंपनी वहां पे आई थी जिनको अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए थे VNIT से, और जब मैं बात करता था कि बोला सब अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लोग चिल्लाते हैं, सही में सच क्या है? उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ पे 500 लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, लेकिन एक भी प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिलता। यानी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट है,
प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर कैंडिडेट हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। यानी ये जो बड़ा गैप है, ये कौन फिलअप करेगा? इंस्टीट्यूशन का रोल होता है सिलेबस पढ़ा, वो उनके लिए मैंडेटरी। लेकिन इसके अलावा जो इनपुट्स जो आपके लिए जरूरी है, वो कहाँ से आएंगे? अब कुछ अच्छे कॉलेजेस, जैसा अपना कॉलेज, ये इनपुट देने की डेफिनेटली कोशिश करता है। मेरा खुद का बच्चा यही पे पढ़ाई की, मुझे पता है कि ये कॉलेज ये इनपुट्स देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। हम कितना लेते हैं? एक सिंपल चीज बताना चाहता हूँ कि हमारा अप्रोच हमारे एजुकेशन के प्रति कैजुअल अप्रोच नहीं होना चाहिए। एडमिशन मिल गई मतलब डिग्री मिल जाएगी, अब अपन पीएचडी हो गए हैं, डिग्री तो मिल जाएगी, सभी को मिलेगी, नहीं मिलेगी। बट व्हाट अबाउट your own strength? What about your own ability? What about various skills which are important for your प्रोफेशनल लाइफ? उसका क्या? वो तो अपने आप को ही डेवलप करने पड़ेगी। मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे आपके फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, फील्ड के बारे में। मैं अपने फील्ड के बारे में, जब मैं साइकोलॉजी में पीजी कर रहा था, तो पीजी करते समय मैं सिलेबस के बाहर की बहुत सारी चीजें पढ़ रहा, रिलेटेड टू साइकोलॉजी, लेकिन बहुत सारी अलग अलग चीजें पढ़ता। लाइब्रेरी में जाता था, वहां के बुक्स एक्सप्लोर करता था, गूगल तो था नहीं तब, झाँक के देखता था अंदर, पन्ने पलटता था, कुछ काम का लगता है क्या, कुछ इंटरेस्ट डेवलप होता है क्या, जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो पढ़ते जाओ। इस तरह से मैं करता था। इसके अलावा मैं और एक चीज करता था, हमारे अमरावती में जो साइकियाट्रिस्ट थे डॉक्टर श्रीकांत देशमुख, मैं उनको जाके मिला। सर मैं आपके यहाँ पे आऊँ क्या? मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट, मैं आपके साथ बैठूं क्या? उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। पहले 6-7 महीने तो उन्होंने मुझे बाहर बिठाया चेंबर में। मैं सिर्फ ऑब्जर्व किया करता था, कौन से पेशेंट है, कौन सी बीमारी है साइकोलॉजिकल, क्या क्या करते हैं वो लोग, कैसा बिहेवियर होता है, उनके जो रिलेटिव है जो नॉर्मल दिखते हैं उनसे जाके बात करता था, भैया इसको क्या हुआ, यहाँ पे क्यों लिखना है, सब जानकारी मिलती। अब ऐसा 6-7 महीने जब मैं सिंसियरली वहां पे जाके बैठता था अपना कॉलेज खत्म होने के बाद, 5-6 महीने के बाद उन्होंने मुझे अंदर एंट्री दी, अपने बगल में बिठाने लगे चेयर डाल के, वहां पे पेशेंट देखने लगे। पेशेंट जाने के बाद वो मुझे सवाल पूछने लगे, बताइए पेशेंट कौन सा था, बताइए कि क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जब मैंने पीजी कंप्लीट किया, तो पीजी के साथ साथ डिग्री के साथ साथ मुझे एक इंसाइट मिला हुआ था कि इस फील्ड में किस तरह से पेशेंट को डील किया जाता है, इंसान को डील किया जाता है। जो मैंने किया वो बाकी किसी ने नहीं किया। और ये सारी चीजों का फायदा जब मैंने अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट किया तब मुझे हो, क्योंकि मैंने पीजी करते समय ही सोच के रखा था कि मैं लेक्चरशिप नहीं करने वाला साइकोलॉजी, मैं अपना क्लिनिक खोलूंगा। अब मैंने अपना क्लिनिक खोलने के बाद भी वो क्लिनिक एस्टेब्लिश होने के लिए 12 साल लगे। वजह ये थी कि हमारे समाज में जब तक इंसान पूरी तरह से पागल नहीं हो जाता, तब तक उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके ही नहीं जाता। जब घर वालों को पता चलता कि नहीं आप ये अपने को पागल करेगा, घर पे ऐसे ही रखा है, तब वो जाके उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं। और तब फिर वो केस साइकोलॉजिस्ट के हाथ की नहीं रहती, वो साइकियाट्रिस्ट की केस बन जाती, वहां पे दवाइयों से उसको ठीक करना पड़ता है। इसलिए मुझे अपनी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करने में काफी समय लगा। बाद में मैंने अपने अलग अलग डोमेन सिलेक्ट कर लिए। एक था एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, अभी मैडम ने इंट्रोडक्शन दिया तो बताया, पढ़ाई में परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाए ये मैं सिखाता हूँ, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए ये मैं सिखाता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप किए जाते हैं ये मैं सिखाता हूँ।
प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसे बढ़ानी चाहिए ये मैं सिखाता हूँ। ये जो अलग अलग स्किल्स है जिसे सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है, ये सॉफ्ट स्किल जहाँ पे भी आप जॉब करने के लिए जाओगे उनको ये चाहिए आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ। क्योंकि आपको अगर एक अच्छी पोजीशन वो जॉब ऑफर कर रहे हैं, वहां पे आपके अंडर काम करने वाले 25 लोग हैं, 30 लोग हैं। ये 30 लोगों को अगर आपको टैकल करने की एबिलिटी आप में है तो ही आप सक्सेसफुली वहां पे काम कर पाओगे। और ये टैकल करना ये सॉफ्ट स्किल वाला। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी आप जॉब करने वाले हो, आपके अपने एकेडमिक्स के अलावा ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने इस 3 साल में ही सीखनी चाहिए। अब ये स्किल कैसे डेवलप हो? आपके कॉलेज में अलग अलग एक्टिविटीज होती है, एनएसएस है, कल्चरल एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट्स होते क्या मुझे पता नहीं, स्पोर्ट्स हो गए, अलग अलग इवेंट्स हो गए। ये सारे इवेंट्स में जो आपको अच्छे लगे उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते जाओगे, भला ही आपको उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा या कोई मेडल नहीं मिलेगा, हर जगह पे आप नंबर 1 नहीं आओगे, एटलीस्ट वो फील लेने के लिए आप वहां पे जाएंगे कि भैया होता क्या है। डिबेट कंपटीशन होती है, अलग अलग इंटर कॉलेजियन डिबेट कंपटीशन, पार्टिसिपेट तो करो। स्टेज पे जाके 4 मिनट 5 मिनट अपने 5 लोगों के सामने रखो तो नहीं आएगा आपका नंबर, लेकिन ये भी आपने कोशिश कर ली तो उसमें से जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जो एक स्किल बिल्डअप होगा, वो आपको आने वाले लाइफ में काम आएगा। जब मैं आपकी उम्र का था, बीएससी में, स्टेज पे खड़े होके इतने लोगों के सामने बात करने की मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं। यानी यहाँ पे आ जाओ तो सबसे पहले तो हाथ पैर कांपने लगते, पसीना छूटता, हार्ट बीट बढ़ जाते, और यहाँ पे बैठे हुए लोगों को देखने के बाद जो कुछ रट के आया था बोलना है सब भूल जाते। यानी 2-3 बार कोशिश की, पहले 2-3 बार मेरा नाम लिया, वो कंपटीशन में नाम दिया था, जैसे ही नाम लिया मैं बाहर के रास्ते से गायब, हॉल में ही नहीं हूँ। 2-3 बार ऐसे हुआ, फिर भी हिम्मत की। उसके बाद ऐसे हुआ, नाम लिया, मैं स्टेज पे गया, खड़ा रहा, और यहाँ पे सब लोगों को देखने के बाद ब्लैंक हो गए। 2 मिनट 3 मिनट ऐसे ही खड़ा, और सब बच्चे, कॉलेज के बच्चे हो करके चिल्लाने लगे, कमेंट करने लगे, कागज टेक के मारने लगे, डर के मारे फिर वहां से उतर के भाग गया। ऐसी कंडीशन थी। लेकिन पीजी करने जब गया तो मैंने ठान लिया था कि ये सारे स्किल मेरे अंदर आने चाहिए। फिर कोशिश, फिर एक्सपर्ट की राय ली, और धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग इतनी अच्छी तरह से डेवलप किया कि आज अगर दिन भर में मुझे लेक्चर देने के लिए कहा, मैं लेता हूँ, 8-8 घंटे के सेशन लेता हूँ, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक अकेला बात कर रहा हूँ, सामने वालों को बोर नहीं होने देता। ये स्किल डेवलप करिए। ऑब्वियसली ये मेरे फील्ड की बात करिए जरूरी, मैंने की। आपके फील्ड के लिए क्या जरूरी है ये इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको फोकस रहना चाहिए। सारी चीजें करो लेकिन अपने एकेडमिक्स पे फोकस रहो। मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम रखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल हेल्थ। लोग मुझे पूछते थे कि यार ये एजुकेशनल हेल्थ नाम की क्या चीज है, एजुकेशन का और हेल्थ का क्या संबंध? मनोविज्ञान यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ की डेफिनेशन कर, उसमें एक पार्ट है फिजिकल हेल्थ, दूसरा पार्ट है मेंटल हेल्थ, तीसरा पार्ट है सोशल हेल्थ, चौथा पार्ट है प्रोफेशनल हेल्थ, और पांचवा पार्ट है
स्पिरिचुअल हेल्थ। ये 5 हेल्थ बताया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। यानी कौन से इंसान को हेल्दी कहेंगे? जो इन 5 चीजों में हेल्दी है, शरीर से, मन से, सोशल यानी समाज में बिहेव करते समय, प्रोफेशनली जॉब करते समय, काम करते समय, और 5वां स्पिरिचुअली यानी आंतरिक शक्ति कहेंगे। तो मैं तो अंधविश्वास अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाला आदमी हूँ, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ये वर्ड मैं स्पिरिचुअल इस तरह से नहीं लेता हूँ। स्पिरिचुअल का मतलब हमारे अंदर की अच्छाई, सोसाइटी की अच्छाई, दुनिया की अच्छाई, और दुनिया की अच्छाई की तरफ हेल्दी टोन में देखने वाला इंसान है, ऐसा मैं कहूँ। ये 5 चीजों की डेफिनेशन, 5 चीजें हेल्थ की डेफिनेशन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में है। जब मैं बच्चों का बारे में सोचता हूँ तो यहाँ पे प्रोफेशनल ये वर्ड हटाना होगा। यहाँ पे प्रोफेशन नहीं है क्योंकि वो तो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं। यहाँ पे मैंने एजुकेशनल ये वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। मान के चलिए कि इंसान की एवरेज लाइफ 45 साल 75 साल यानी 75 ईयर्स की है। इंसान एवरेज लाइफ 75 पकड़ के चलते हैं ना, 75 साल तक वो जीता है। अब ये 75 साल की लाइफ में पहले 25 साल हर इंसान को पढ़ाई करनी पड़े। ये पहले 25 साल में इस इंसान ने, इस बच्चे ने क्या किया, इसके आधार पर बचे हुए लाइफ के 50 साल वो सक्सेसफुल जिंदगी जिएगा या नहीं जिएगा, ये निर्भर करता है। अगर पहले 25 साल में उसने अपने करियर पे, उसने अपने एजुकेशन पे फोकस किया, एक अच्छी डिग्री हासिल की, अच्छे अच्छे स्किल गेन की, तो जब भी ये इंटरव्यू के लिए जाएगा तो आराम से सिलेक्ट हो जाएगा, प्रोग्रेस करता रहेगा और जिंदगी में काफी अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। लेकिन ये 25 साल में अगर उसने अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, अगर उसने अपने अंदर के स्किल्स डेवलप नहीं किए, और बाद में अगर वो रियलाइज करता है कि मैंने पढ़ाई करनी चाहिए थी, मैंने ये स्किल डेवलप करने चाहिए थे, मैंने ये करना चाहिए था, अब उसके हाथ से वो समय निकल गया, अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं है, वो दोबारा वो सारी चीजें रिपीट नहीं कर। आपके हाथ में पीएचडी की डिग्री आई, लेकिन मार्क है 45-50%। अब अगर आप ये बोलते हो कि नहीं यार मैं दोबारा पीएचडी करता हूँ और अच्छे नंबर लाता हूँ, मुझे मौका आपके हाथ में नहीं है, अब वो निकल गया पास को, जो आपने किया वो लेवल तो आप पे लग गया कि भैया ये 45-50% वाला बच्चा है। इसलिए इंडक्शन प्रोग्राम लिए जाते हैं और ये बताने की कोशिश की जाती है मेरे जैसे साइकोलॉजिस्ट से कि भैया ये बिगिनिंग है, यहीं से अपने आप को कंट्रोल करो। क्या क्या प्रॉब्लम देख रहा हूं मैं आपके अंदर, यानी आपकी जनरेशन के अंदर, ये भी बता देना चाहता हूँ। एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, ये मैं कहूंगा नॉट ओनली एक्सेसिव, नॉन प्रोडक्टिव यूज ऑफ मोबाइल, जिसमें गेमिंग आएगा, जिसमें इंस्टा आएगा, जिसमें बाकी सोशल मीडिया आएंगे, ये सबसे बड़ा हर्डल है, ये सबसे बड़ा बैरियर। दूसरा एक बैरियर मैं आपके जनरेशन में देख रहा हूँ, इजी मनी कैसा आएगा इसके ऊपर दिमाग लगा। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, सर शेयर मार्केट में एक दिन में 2 घंटे बैठे तो 5-10 हजार तो ऐसे ही आ जाती। ये सोचने वाले बहुत सारे बच्चे हैं।
फिर उधर वो दिमाग डालना चालू कर। अगर दिन में 2 घंटे बैठ के 5-10 हजार ऐसे ही आ जाते, ये अगर बात सच होगी होती, तो सारे के सारे टैलेंटेड लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, जिनके पास हमसे ज्यादा टैलेंट है, वो अपना पूरा काम धंधा छोड़ के वही करते थे ना यार, दूसरा कुछ करते ही नहीं थे। इनमें अगर 10-12 वैसे ही आ रहे हैं, मतलब साल के 3-3.5 लाख वैसे ही आ रहे हैं, तो जॉब करने की जरूरत, 2 घंटे मार्केट बैठना है शेयर मार्केट में, 10-15 लाख इधर उधर करने हैं, 10-15 हजार 20 हजार रुपए दिन के कमाने हैं, आराम की जिंदगी कटेगी। इतना आसान नहीं है। मैंने जरा जड़ तक जाके ये सारी चीजें देखने की कोशिश की, ये सब करने वाले जो लोग हैं। पता चला कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10-12 हजार कमाए, 10-12 हजार कमाए, 10-12 हजार कमाए। एक दिन 10-12 हजार कमाना है ये सोच के बैठा और 40 कमाए। एट द एंड ऑफ द डे कैलकुलेट किया, 50 आए थे, 50 गए। फिर वो चित से बैठता, नहीं नहीं होता उसमें। ऐसे में बहुत सारे लोग बर्बाद हुए। मैं ये नहीं कहता वो गलत चीज, शेयर मार्केट ट्रेडिंग ये गलत चीज है, ये मैं नहीं बोलता। अगर वो करना है तो उसकी पढ़ाई करो। जो वहां पे सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने 10 साल 12 साल 15 साल वहां पे काम किया, एक्सपर्ट की हेल्प ली, एक्सपर्ट की राय ली, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए करते रहे, गए आए, ये सब ठीक है। लेकिन वहां पे नॉलेज गेन, पढ़ाई की उन चीजों। अब मेरा एक स्टूडेंट जो फिजिक्स का प्रोफेसर भी था इंजीनियरिंग कॉलेज में, कोविड के पीरियड में सब कॉलेजेस बंद थे, खाली बैठा था, तो उसने इस पे ध्यान लगाया, उसने ये सारी चीजें पढ़ी। ये पढ़ने के बाद उसने ट्रेडिंग चालू किया, अभी वो अच्छा ट्रेडिंग कर रहा है, अभी वो अच्छा कमा रहा है, ये भी बता। मुझे सिखाया, सर बोले मैं आपको भी सिखा देता हूँ, मैं भी सीख गया, कोविड में काम ही नहीं था। लेकिन ये करते समय उसके अंदर के रिस्क फैक्टर, वो सारी चीजें देखने के बाद पता चला कि भैया अपना साइकोलॉजी ठीक है, उधर अपने को दिमाग लगाना ये अपना काम नहीं। देन आई विल ड्रॉप, नहीं अपना काम है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी चीजें, हर्डल्स आपके सामने आएंगे। इजी मनी के पीछे मत भागो। नंबर एक मैंने बताया, मोबाइल का एक्सेसिव यूज। दूसरा, इजी मनी के पीछे मत भागो। मोबाइल का नॉन प्रोडक्टिव यूज मत करो, प्रोडक्टिव यूज है। अभी एआई आ रहा, आपको पता होगा एआई क्या है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे बड़ी बात क्या होने वाली है, जैसे जैसे एआई का यूज बढ़ेगा, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट खत्म होते जाए। अब ये अलार्मिंग है कि नहीं? अगर एआई यूज हो रहा है, अगर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहे हैं, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप कैसे सरवाइव करोगे? ऐसे सर्कमस्टांसेस में सरवाइव करने के लिए आपके पास क्या स्किल होगा, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। इसके बारे में आपको अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी। ये एआई आता है, ये सारी चीजें आता है, तो मैं इसका विक्टिम नहीं बनूंगा, मैं इसका यूज करके अपने आप को 4 कदम और आगे लेके जाऊंगा। और ये स्किल, ये टैलेंट आप लोगों के पास है, इतना ही है कि जब प्यास लगेगी तो कुआं खोदूंगा, ऐसा नहीं चलने वाला। आपके पास ऑलरेडी वो चीजें अपने हाथ में होनी चाहिए, ये विजन होना चाहिए। जो ये विजन लेके आगे जाएगा, वो जिंदगी में कुछ बनेगा। मेरे बोलते बोलते बीच में वो बात थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई। पहले 25 साल एजुकेशनल हेल्थ,
अभी आपकी उम्र 17 या 18 होगी, 18 या 19 होगी, मैक्सिमम 20 होगी, अगर कहीं पे 11 12 में 1 आध साल ज्यादा ले लिया हो। यानी आपके हाथ में 5 से 6 साल आज से है। ये 6 साल में आपको ये 6 साल के समय का प्रॉपर यूज करके अपने आप को ऐसा बनाना है कि बची हुई आपकी 50 साल की जिंदगी आप सक्सेसफुल लाइफ जी पाओ। और ये 6 साल अगर आपने टाइम पास करने में गंवा दिए, तो उसके बाद 50 साल आप फिर स्ट्रगल करते रहोगे, आपको कोई खड़ा नहीं करने वाला। 6 साल की मेहनत, 50 साल की सक्सेसफुल लाइफ। 6 साल का टाइम पास, बचे हुए 50 साल का स्ट्रगल। दोनों में से क्या चूज करना है, ये मैं आपको समझ, ये अगर समझते हो, मेरे पास है ऐसे बच्चे। पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लरिकल पोस्ट पे, लिमिटेड सैलरी, 2 बच्चे। वो सिंसियर बच्ची पढ़ाई करते कि उसने सोचा मैं सीए बनूंगी, सीए की पढ़ाई करने लगी। सिंपल सी बच्ची, यानी नीचे की गर्दन ऊपर की नहीं रही, लेकिन सीए पे फोकस किया, स्किल डेवलप की। सीए की एग्जाम में सेकंड टॉपर आई थी, सीए में सेकंड टॉपर, नेशनल लेवल की एग्जाम है। पहला ही जो ऑफर हुआ, करीब 70 लाख का पैकेज, 70 लाख का पहला ही तो ज्वाइन कर लिया। 2 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आज उसकी उम्र हार्डली 30 या 31 साल की। आज उसका पैकेज है 3 करोड़। पापा की पेंशन आती है 40,000 रुपये, और उसकी पहली सैलरी थी 70 लाख साल की। यानी इसके पिताजी साल के 6 लाख, 6 लाख के 4 साढ़े 4 लाख रुपए इसके पापा साल के कमा रहे, और ये कितना कमा रहे साल के? 70 लाख। आज सक्सेसफुल है जी। क्या किया? पहले 25 साल डिवोट कर दी। आपको होगा ना? ये जब आप कर पाओगे तो सक्सेसफुल बनोगे। एक चीज आपके साथ और होती है, जब भी कोई आपसे, आपके परिवार वाला, आपका रिश्तेदार, आपके टीचर, बाहर के लोग बात करते हैं, तो बात करते करते क्या होता है पता है? 2 3 सेंटेंसेस बार बार बोले जाते हैं। तू पगला है, तुझे अकल ही नहीं है, तू जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, तेरी लायक ही नहीं है, फालतू है तेरी लाइफ। ये चीजें बार 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 कोई ना कोई आपको बोलता गया, हाँ या ना? बोलो ना, हाँ या ना? बोलता गया है। बाद में क्या होता? जब भी आपके लाइफ में दिक्कतें आती है, छोटे छोटे फेल्यूर्स आते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम आपके लाइफ में आते हैं, तो ये जो प्रोग्राम है, जो लोगों ने आपको बताया था, ये ट्रिगर होने लगता है, और आप सोचने लगते हो मैं पागल हूं, मैं गधा हूं, मुझे अकल नहीं है, मेरी लायक ही नहीं है, मैं जिंदगी में कुछ भी करने के काबिल नहीं हूँ। ये प्रोग्राम आया कहाँ से? लोग आपको ऐसा कहते थे, और बाद में हुआ क्या, ये आपके दिमाग में प्रोग्राम हो गया, और बाद में आप अपने दिमाग में नहीं डालना चाहिए, मैं पागल हूँ, मैं गधा हूँ,
मैं बेवकूफ हूँ, मुझे अकल ही नहीं है, मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। जब भी प्रॉब्लम में रहोगे और यही प्रोग्राम ट्रिगर होता जाएगा, आप डिप्रेशन में जाओगे, आपके अंदर निगेटिविटी आती जाएगी, आपके अंदर की कुछ करने की एबिलिटी जो है ये खत्म होती जाएगी। लोग तो ऐसा बोलेंगे क्योंकि उनको बोलने में क्या जाता, लोग तो बोलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है, ये आपके अंदर का जो प्रोग्राम है इसे खत्म करना है। आपको ये नहीं सोचना है, आपको अलग सोचना है। आपको क्या सोचना है? मैं टैलेंटेड हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरे पास दिमाग है, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर एबिलिटी है। ये प्रोग्राम को ट्रिगर कर अपने अंदर। इसका मतलब क्या है? मनोविज्ञान का नियम है, आप अपने आप से जो बात करते हो वही सच होती है। आपका दिमाग सिर्फ आपकी बात सुनेगा। रूल क्या है मनोविज्ञान का? आपका दिमाग सिर्फ आपकी बात सुनता है। आप अगर अपने दिमाग को बोलेंगे मैं टैलेंटेड हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कर सकता हूं, मैं याद रख सकता हूं, मेरे अंदर बहुत स्टैमिना है, मेरे अंदर बहुत ताकत है, तो आप कर पाओ। और आपका मन अगर आपको ये बोलता है कि मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं पागल हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी लायक ही नहीं है, ये अगर अपने आप से बोलते हो तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए आज के बाद अपने आप से क्या बोलो? ये बाहर के लोगों ने डाले हुए थॉट्स अपने आप से मत बोलिए। अपने लिए अपने सेट ऑफ थॉट्स बनाइए। मैं टैलेंटेड हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं एफिशिएंट हूँ, मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ, मैं याद रख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। मेरा एक किस्सा सुना दो मैं आपको। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि अपने बारे में स्टेज से निगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं अपने बारे में निगेटिव जो भी बातें हैं सब बताता हूँ। साइकोलॉजी करने से पहले मैंने बीएससी किया, बीएससी मैथ्स था मेरा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कर ली। अब ये करते समय मैं कॉलेज में सिंसियर था, रेगुलर कॉलेज में जाता था, पीरियड्स अटेंड करता था, रोज शाम को 4 घंटे पढ़ाई करता था, कॉलेज में सिंसियर था, पढ़ाई सिंसियरली करता था, नोट्स निकालता था, मेरे नोट्स अप टू डेट रहते थे। कॉलेज बंक करने वाले जो लड़के रहते थे वो मेरी नोट्स लेके जाते, उससे पढ़ाई करते, उससे परफेक्ट रहते थे। कभी कभी जो बंक करने वाले बच्चे उनको अगर कुछ समझता नहीं था तो मैं रेगुलर पढ़ने वाला बच्चा था, तो मेरे पास आते थे, वो टॉपिक पूछते थे, मैं उनको समझाता था, वो बच्चे एग्जाम में पास हो जाते। और मुझे वो सब्जेक्ट में 100 में से 3 मार्क्स, 100 में से 4 मार्क्स, 100 में से 5 मार्क्स, फाइनल एग्जाम में मैं फेल हो जाता। मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर 3 अटेम्प्ट किए, बीएससी सेकंड ईयर मैंने 4 अटेम्प्ट किए, बीएससी फाइनल ईयर मैंने फिर 3 अटेम्प्ट किए। यानी बीएससी कंप्लीट करने के लिए मुझे पंचवार्षिक योजना लगी, 5 साल लगे। और इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे सिर्फ 45% मार्क आए। मैंने बताया मैं कॉलेज में रेगुलर था, मैं सिंसियरली पढ़ाई करता था, कोर्स परफेक्ट थे, रिवीजन परफेक्ट थी, लेकिन फिर भी फेल होता था। क्यों? मुझे पता है।
इसके बाद मैंने एमए साइकोलॉजी में एडमिशन किया। मुझे पता है कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाता था, वो एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट ये हुआ कि मैंने साल भर में जो सिलेबस वाली चीजें थी वो नहीं सुनी। जो रेगुलर ट्रेडिशनल क्लासेस होती थी वहां पे मैं कैजुअली जाके बैठता था, थोड़ी देर बैठता था या बंक करता था। मैंने सिंसियरली कॉलेज में भी नहीं बैठा, सिंसियरली मैंने सिलेबस वाली चीजें भी नहीं पढ़ी। मैं अपने आप सबको क्या बोलता था, अरे ये तो आसान है, ये तो मैं 1 महीने में पढ़ के याद रख लूंगी, बाकी चीजें करता हूं। मैंने आखिरी के 1 महीने में सिलेबस पढ़ा, एक बार पढ़ा। पढ़ते समय क्या सोच रहा था, अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं आराम से याद रख सकता हूँ, ये तो मैं आराम से लिख सकता हूँ। एक ही बार पढ़ा, एग्जाम में जाके लिखा, याद रहा, और मैंने टॉप किया, यूनिवर्सिटी टॉप किया। जब मैं ईमानदारी से पढ़ता था, रिवीजन करता था, तब मैं फेल होता था। और जब मैंने सिर्फ 1 डेढ़ महीना पढ़ाई की सिलेबस की, तो मैंने यूनिवर्सिटी टॉप कर दिया। ये चेंज कैसे आया, इसकी वजह एक ही है, मेरी अपनी सोच। जब मैं बीएससी में था तो डरता था, जब भी पढ़ता था तो यही सोचता था, बाप रे ये कितना डिफिकल्ट है, ये अगर एग्जाम में पूछा तो मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। मैंने अपने खुद के दिमाग में प्रोग्राम कर लिया, ये डिफिकल्ट है, ये एग्जाम में आया तो मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने पहले ही अपने दिमाग में प्रोग्राम कर लिया, और जब भी एग्जाम होती थी तो ब्लैंक हो जाता था, क्योंकि वही मैंने अपने दिमाग में प्रोग्राम कर दिया। साइकोलॉजी में जाने के बाद ये प्रोग्राम अपने आप चेंज हो गया। अरे ये तो आसान है, ये तो मैं आराम से लिख सकता हूँ, ये तो आराम से याद रख सकता हूँ। सोच बदलो, परफॉर्मेंस बढ़ेगा। आप अपने आप को क्या कहते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप अगर अपने आप को ये कहते हो, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं याद रख सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ, आप कर पाओगे। इसके लिए मनोविज्ञान में हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताते हैं, आप घर पे जाके करके देखिए। पेंडुलम होता है, फिजिक्स वालों को पता है। एक छोटा सा पत्थर एक रस्सी से बांधो, ऐसा पकड़ के रखो, स्टेडी करो, पत्थर की तरफ देखो और सोचो, ये हॉरिजॉन्टल घूमेगा, सिर्फ सोचो और पत्थर पे कॉन्सेंट्रेट करो। 15-20 सेकंड में ये पत्थर हॉरिजॉन्टल घूमने लगेगा। स्टडी करो, फिर सोचो ये वर्टिकल घूमेगा, वो वर्टिकल घूमेगा। फिर स्टडी करो, फिर सोचो सर्कुलर घूमेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। आप जैसा सोचोगे वो जो पत्थर है, पेंडुलम वाला पत्थर है, वो मूव करते रहेगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम साइकोलॉजी में बता दें, क्यों घूम रहा पत्थर। आपके उंगलियों में होने वाली स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी उस पत्थर को मोमेंटम देने के लिए सफिशिएंट है। जब पत्थर घूमेगा तो आप अपने उंगलियों की तरफ देखिए कि आप जानबूझकर उंगली हिला तो नहीं रहे। आपको पता चलेगा कि आप ये कोशिश कर रहे हो कि उंगली स्टेडी रहे, और फिर भी पत्थर घूम रहा है। यानी ये जो पत्थर घूम रहा है, ये आपके थॉट उसको मोमेंटम दे रहे हैं। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम इसलिए बताते हैं ताकि आप रियलाइज करो, आपका दिमाग सिर्फ आपकी बातें सुनता है। और एक आखिरी की चीज बता देना चाहूंगा, ताकि मैं क्वेश्चन आंसर के लिए आपको समय देना चाहता हूँ, इंटरेक्शन के लिए। बीएससी में गए हो, जूनियर कॉलेज में आए हो, मम्मी पापा का बहुत ज्यादा कंट्रोल अभी अपने ऊपर नहीं रहा है ना। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड आसानी से मिल जाते, जब ढूंढते ही रहते कौन मिलता। ये चक्कर में ग्रेजुएशन लेवल में मत पड़ना, क्योंकि अगर आप इसमें फंस गए तो हो गया आपका कल्याण, फोकस नहीं कर पाओगे।
पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे, उसने खाना खाया होगा क्या, वो अभी क्या कर रही होगी, मेरे मैसेज को रिप्लाई क्यों नहीं दिया, मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, इसी में फंसे रहोगे। और ये आपके जो 5 साल का, जो मैं बता रहा हूँ, उम्र के 25 साल का, 5 साल का जो पार्ट है, ये 5 साल में जो आपको परफॉर्म करना है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। उसके बाद आप कहीं के नहीं रहोगे। जो आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह होगी वो तो तरक्की करके आगे निकल जाएगी और आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा, चाहे लड़की हो या लड़का हो। इसलिए उम्र के 25 साल तक ये चक्कर में नहीं पड़ना, फ्रेंडशिप करो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फ्रेंडशिप करो, बॉयज गर्ल्स एक दूसरे से फ्रेंडशिप रहनी चाहिए, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहिए, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए, छोटे मोटे इवेंट्स पिकनिक्स प्लान करने चाहिए, ये सब एंजॉय करना चाहिए। लेकिन अभी ये दिल वाली बात जो है इसको साइड में रखो। जब आप कुछ बन जाओगे, तो मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं, मैं लव के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी खुद की लव मैरिज है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सही समय आया। पहले मेरा जो अफेयर हुआ जब मैं जॉब कर रहा था तब हुआ, प्रोफेशन में आ रहे, चल भैया अपने पैरों पे खड़ा हूँ, कमाई कर रहा हूँ, अब मुझे राइट है अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने का। जब मैंने ढूंढा, वो भी जॉब कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चीजें अगर आप कॉलेज लाइफ में करोगे, करियर पीरियड में अगर ये चीजें करोगे, तो जो सेटबैक बैठेगा वो बहुत बड़ा होगा और वो समय दोबारा आने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं बहुत सारी चीजों पे बात करता हूँ, बताता हूँ। मैं अपने क्लिनिक में बच्चों को एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए टेक्निक सिखाता हूँ, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है, पढ़ाई कैसी करनी है, एग्जाम कैसी देनी है, एंग्जाइटी कैसे कंट्रोल करना है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, ऐसे ढेर सारी चीजों के ऊपर मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ। अब 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में अगर मुझे मौका मिले तो मैं दिन भर पढ़ाते बैठूंगी। लेकिन जो लिमिटेड समय हमको मिला है, इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप सवाल पूछो, मैं आपके सवालों के जवाब। ओके, यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल सर ने, एडवाइस सर ने बुलाया, आपके साथ बातें करने का मौका मिला, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। लेकिन अगर आपके दिल में सवाल होंगे तो आप सवाल पूछिए, ताकि सवाल जवाब के जरिए हम अपना सेशन आगे बढ़ाएं। Don't hesitate to ask questions. You can ask in English, you can ask in Hindi, you can ask in Marathi also. हाँ जी, go ahead. माइक है क्या, माइक लो ताकि सबकी सुनाई दे। आ गया कि हाँ जो आ गया। इसकी आवाज में हाँ बोलो। अच्छा, इन्होंने सवाल पूछा है कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। साइकियाट्रिस्ट जो है ये एमबीबीएस करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन साइकियाट्री में करते हैं और उनका काम होता है मानसिक बीमारियों को दवाई देके ठीक करना। ये हो गया साइकियाट्रिस्ट का काम।
साइकोलॉजिस्ट वो होता है जिसकी मेडिकल की डिग्री नहीं होती, सिर्फ साइकोलॉजी की डिग्री होती है। तो मेडिकल की डिग्री ना होने की वजह से उसको दवाइयां देने का कोई राइट नहीं, यानी वो दवाइयां नहीं दे सकता। फिर वो कौन सी चीजें डील करता है? जो चीजें यानी जो मानसिक समस्याएं बगैर दवाई से ठीक हो सकती है, ऐसी जगह पे वो साइकोलॉजिस्ट हेल्पफुल रहता है। यानी हर जगह पे कोई बीमारी तो नहीं हो, यानी साइकोलॉजिस्ट हर इंसान के काम की चीज है। हमारा माइंड हेल्दी हो जाए, बैठ सकते हैं, हमारा माइंड हेल्दी रहे, हमारे अंदर सॉफ्ट स्किल डेवलप हो, हमारी एबिलिटीज बढ़ाए, हमारे अंदर जो कंफ्यूजन से, कॉन्फ्लिक्ट है, टेंशन से भी दूर करे, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट हेल्पफुल होता है। साइकोलॉजिस्ट का काम होता है काउंसलिंग करना। अब वो कहाँ कहाँ पे काउंसलिंग करता है? एंजाइटी यानी चिंता अगर है, डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब माइल्ड डिप्रेशन की, उदासीनता, ऐसी जगह पे वो काउंसलिंग करके ठीक करता है। करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो वहां के जो फेल्यूर्स है, प्रॉब्लम्स है, वो दूर करने के लिए हेल्पफुल होता है। मैरिज काउंसलिंग यानी पति पत्नी के झगड़े। अब ये कोई पागल लोग नहीं है, पति झगड़ा करने वाले पति पत्नी, ये भी पागल लोग का है, लेकिन उनमें आपस में नहीं बन रही, वहां पे साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करता है और उनके प्रॉब्लम्स को सुलझाता है। इस तरह से ये दोनों फील्ड पूरी तरह से अलग है। साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन देगा, साइकोलॉजिस्ट बगैर मेडिसिन के जो भी प्रॉब्लम उनको है वो दूर। और तीसरा पार्ट जो है जो इसी से रिलेटेड है वो है न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन से रिलेटेड। अगर ब्रेन में कुछ खराबी है, इरेगुलरिटीज है, अबनॉर्मेलिटीज है, तो वहां पे न्यूरोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट होगी। न्यूरोलॉजी, साइकियाट्री और साइकोलॉजी, ऐसे तीन रिलेटेड ब्रांचेस। और हाँ, यस, आगे हो। सर जैसे एग्जाम्स आते हैं, जैसे अभी हमारा अक्टूबर में एग्जाम है, जब पेपर ऐसे दो स्टेप से मैम के हाथ में आता है, हाँ, एंजाइटी लेवल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। अच्छा, तो जब पेपर हाथ में आता है एवरीथिंग इज ब्लैक, हाँ, उसको कैसे हम लोग हाँ, उसको फील होता है। ओके, ठीक। इसने सवाल पूछा है कि जब भी पेपर हाथ में आता है तो ब्लैंक हो जाती है, जो पढ़ा हुआ है वो सब वॉश आउट हो जाता है, याद नहीं रहता है। ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात, जब भी पढ़ाई करोगे तो ये सोचो कि ये जो मैं पढ़ रही हूँ, हाँ ठीक है, भला ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं अच्छे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ती हूँ। अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगी तो ये मुझे याद रहेगा। यानी पहले क्या सोचो, ये मुझे याद रहेगा। याद रहेगा ये सोचना है, सोचने के साथ साथ वो याद रहने के लिए कीवर्ड्स निकालने हैं, यानी मेन पॉइंट समझना है, कीवर्ड्स निकालने हैं। मुझे याद रहेगा ये सोचना है। ये सोचने के बाद जब भी एग्जाम रहेगी तो ये सोचो, मैंने जो पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, ये मुझे याद है, और जब मैं एग्जाम में ये चीजें देखूंगी तो मुझे आसानी से याद आएगा। आप अगर ये सोचोगे कि मुझे आसानी से याद आएगा, तो वो चीजें आपको आसानी से याद आएगी। ओके, ये सिंपल तरीका है, ये मैं सभी को बताते रहता हूँ, यानी थॉट पे कंट्रोल करने वाली चीज़ है। दूसरी चीज, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, पहले दो तीन क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे, ऐसा मान के चलो, डरो मत। ये ढूंढो कि उसमें से कौन से सवालों के जवाब आपको आ रहे।
जिसके जवाब आपको आ रहे वो लिखना चालू कर दो। जब आप लिखना चालू करोगे, आपका दिमाग जो बचे हुए क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढने में लग जाएगा। जो आता है वो लिखते जाओ, लिखते लिखते कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका जवाब न आने वाले सवालों के जवाब ढूंढने लगेगा। ये लिखते लिखते जो नहीं आने वाले जवाब थे उसमें से याद आना चालू हो जाएगा। ऐसा अगर आप करते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का सीक्वेंस चेंज होगा, लेकिन आप अच्छी तरह से लिख पाओगे और ये चीज को ओवरकम कर लेंगे। ये चीज को ओवरकम करने के लिए एक ही है, अपने को चाहिए समय। और अपन हम खुद से क्या बात करते हैं, मुझे याद आएगा, मैं कर पाऊंगा, मैं लिख पाऊंगा, मुझे जमेगा, मैं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ तो वो आसानी से होता जाएगा। ये ट्रिक यूज करके देखो, 100% सक्सेसफुल रहेगी। क्योंकि मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, पिछले 35 साल से ये पढ़ा रहा हूँ और इसका इफेक्ट बाकी लोग ले चुके हैं। इसके साथ साथ और एक चीज बताना चाहता हूँ, मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्सेशन मेडिटेशन ये कीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर की जो एंजाइटी है वो अपने आप कम हो जाएगी। मान के चलो आपको एक मेडिटेशन नाम की चीज आती ही नहीं, ठीक है, सिंपल तरीका बता रहा है। आंखें बंद करके बैठ, आंखें बंद रखो और ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग कैसी करेंगे, जितनी देर सांस अंदर लेंगे उसको छोड़ने के लिए डबल टाइम लगाएंगे। यानी मान के चलिए 4 काउंट हमने साथ लिए, 1 2 3 4 सांस अंदर लिए, छोड़ेंगे 8 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक्सरसाइज काउंटिंग मन में ही मन में किया तो चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। फिर जितनी देर सांस अंदर लेंगे उससे डबल समय तक छोड़नी है। ये एक्सरसाइज 2-3 मिनट करनी, यही मेडिटेशन। जब ये करोगे तो एंजाइटी कम हो जाएगी, दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, जब ये एक्सरसाइज करते रहोगे तब सोचो, एक्सरसाइज करते करते एग्जाम में मुझे सब याद आएगा, जो मैंने पढ़ा है वो सब मुझे एग्जाम में याद आएगा और मैं कॉन्फिडेंटली लिख पाऊंगा। ऐसा सोचो, यही मेडिटेशन है। ये एक्सरसाइज रोज 2-3 बार करो, जैसे एग्जाम जैसी जैसी करीब आती जाएगी, एक 10-12 दिन पहले से दिन में 2 बार 3 बार ये एक्सरसाइज करते रहो। ये एक्सरसाइज करते रहोगे मेडिटेशन वाली, अपने आप को पॉजिटिव कमांड्स देते रहोगे, तो आप अच्छे से पेपर लिख पाओगे और आपके अंदर से एंजाइटी निकल जाओगे। और फिर भी अगर प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं होता, मतलब एंजाइटी ज्यादा है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप या तो मुझे आगे मिलिए या फिर कोई भी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, वो आपको इससे बाहर निकालने के लिए टेक्निक बताएंगे। एग्जाम पीरियड में मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है। और पूछो, एनीबॉडी? हाँ बोलो, इधर आओ, आ जाओ। आपके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है। इन्होंने ये पूछा कि हम डेली शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते और कंसंट्रेशन नहीं कर पाते पढ़ाई में, तो कंसंट्रेशन कैसे करना है, राइट? यही पूछा था। कैसा है कि अगर आप डेली रूटीन सेट करते हो एटलीस्ट पढ़ाई का, तो आपकी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। आपके रूटीन में सिर्फ पढ़ाई फिक्स रखनी है, बाकी सब फ्लेक्सिबल रखो। फॉर एग्जाम्पल,
रात को 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे में पढ़ाई करो। अब ये टाइम कैसा है कि जिसमें आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं होगा। नॉर्मली 8 बजे के बाद हम घर पे ही रहते हैं, बाहर तो जाते हैं, जो भी बाहर की एक्टिविटी है 2-3 बजे यानी शाम रात को आप 7 साढ़े 7 8 बजे तक खत्म हो जाती है, उसके बाद हम घर पे होते हैं। ये एक टाइम फिक्स कर दो 8 से 11। बाकी एक्टिविटी आपकी फ्लेक्सिबल रहो। अब पढ़ाई का टाइम अगर फिक्स कर दिया और उसी समय रोज पढ़ाई करते हैं, क्या होगा? जब भी वो टाइम हो जाएगा, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे पढ़ाई करने के लिए, कंसंट्रेशन आ जाएगा। अब किसी दिन नहीं हो पा रही, यानी आप मान के चलिए कि 2-3 दिन आपके घर पे कोई फंक्शन है, अरे घर पे मेहमान है, 8 से 11 के बीच में पढ़ाई नहीं हो पा रही, आप क्या करेंगे? ये 3 घंटे के पीरियड पे कम से कम 5-10 मिनट तो निकाल सकते हैं। ये 5-10 मिनट इसलिए निकालने हैं कि आपके दिमाग को कमांड देनी है, ये मेरा स्टडी टाइम है और मुझे पढ़ना है। अब उस समय कुछ भी पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हार्ड बुक 10-15 मिनट तक। इसलिए अपने ब्रेन को मैसेज देना, दिस इज माई स्टडी टाइम। ये अगर स्टडी टाइम का मैसेज ब्रेन को मिलता गया, तो ब्रेन वो हैबिट को कंटिन्यू करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपको स्ट्रॉन्ग हैबिट कौन सी है पता है? ब्रश करने की। कितने सालों से कर रहे हो? सुबह नींद में उससे उठने के बाद पहला काम कौन सा करते हो? ब्रश करना। अब मान के चलो आप सफर कर रहे हो ट्रैवल बस से, सुबह 5-5:30 बजे गाड़ी किसी होटल में रुकी चाय पानी के लिए, वहां पे आपको चाय पीनी है, आपका ब्रश और पेस्ट बैग में है, निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको चाय पीनी है, क्या कर रहे हो? आपका ब्रेन आपको चाय पीने के लिए अलाउ नहीं कर रहा। ब्रेन क्या बोल रहा है? ब्रश नहीं किया, पानी का बूंद भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको चाय पीनी है। तो ब्रेन ने उसके ऊपर रास्ता ढूंढ के निकाला, कुल्ला कर ले, उंगली से दांत साफ कर ले, और दिमाग को कमांड दे दे कि भैया घर पे जाऊंगा तो ब्रश कर लूंगा, अभी के लिए एडजस्ट कर ले। यानी ब्रेन को आपने हैबिट कंटिन्यूटी के लिए उंगली से दांत साफ किए, कुल्ला किया, और ब्रेन से परमिशन मांगी, भैया मेरे को चाय पीने दे यार, और ब्रेन ने आपको परमिशन दे दी, है ना? यानी आपने इस हैबिट को कंटिन्यू किया, ब्रेक नहीं आने दी। सेम वे आपकी स्टडी की जो हैबिट है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी। 8 से 11 पढ़ाई करनी। अब एग्जाम खत्म हो गई, सेमिस्टर खत्म हो गया, नया सेमिस्टर 15-20 दिन के बाद शुरू होने वाला है। 15-20 दिन कोई टास्क ही नहीं है पढ़ाई का। अब 3 घंटे बैठने की जरूरत नहीं, 8 से 11 के बीच में 15 मिनट कुछ ना कुछ पढ़ना है। कुछ भी पढ़ो, नॉवेल पढ़ो, एक आध कोई बुक पढ़ो, कोई मैगजीन पढ़ो 15 मिनट के लिए, ताकि अपने ब्रेन को मैसेज देते रहो मेरा स्टडी टाइम है, मुझे पढ़ना है। किसी भी चीज की आदत डालने के लिए 21 दिन का समय लगता है, आपको पता है, आप गूगल कर दे, 3 हफ्ते में आदत लग जाएगी। आदत लगने के बाद उसको कंटिन्यू करना है। पढ़ाई का टाइम फिक्स, बाकी चीजें फ्लेक्सिबल। ओके, बात समझ गए? एनी अदर क्वेश्चन? हाँ सर। सर आपने जस्ट बोले कि एडिक्शन मतलब किसी चीज की आदत लगाने के लिए 21 दिन तक कंटिन्यूसली करना होता है उसको। हाँ। लाइक अपनी म्यूजिक लाइक गेमिंग या फिर टीवी सीरीज की आदत नहीं है, तो उससे कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने के लिए उससे कैसे मतलब स्टेबलाइज करता है? सबसे पहली बात तो अच्छी आदत लगाने के लिए 21 दिन लग, बुरी आदत 2-3 दिन में लग जाता है।
बुरी आदत लगाने के लिए टाइम नहीं लगता। ओके, अब गेमिंग को कंट्रोल नहीं करना है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहे हो तो उसे कंट्रोल नहीं करना है, उसे स्टॉप करना है। गेमिंग का जो भी एडिक्शन है उसे कंप्लीटली स्टॉप करना है, क्योंकि वो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है और वो आपके करियर में बाधा डालेगी। अब गेमिंग किसके लिए है? आदमी रिटायर्ड हो गया, पेंशन खा रहा, काम धाम है नहीं, खाली बैठा रहा तो इसकी उंगली कर, उसकी उंगली कर, उसकी उंगली कर। अच्छा, ऐसे आदमी को सिखा देना एक आध गेम, भैया ऑनलाइन गेम को खेलना है हमको तक। यानी वो जो ऑनलाइन गेम वाला किस्सा है वो उन लोगों के लिए छोड़ दो। हम जो नए जनरेशन के हैं, प्रोफेशनल है, काम करने वाले लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, उनके लिए गेमिंग ये अभी करने की चीज नहीं है, नॉन प्रोडक्टिव है। या तो वो आपके प्रोफेशन में बाधा डालेगी या आपके पढ़ाई में बाधा डालेगी, इसलिए नॉट अलाउड। फिर गेम खेलने कौन से? जिसका एडिक्शन नहीं होता ऐसे गेम। ऐसे कौन से गेम है? ऑफलाइन वाले सब, उसका एडिक्शन ही नहीं होता, सारे ऑफलाइन हुए। जैसे यहाँ पे बैठे हुए जो सीनियर प्रोफेसर है मेरे उम्र के, उनको पता होगा समर वेकेशन में हम पत्ते खेलते थे, लूडो खेलते थे, सांप सीढ़ी खेलते थे, मजा आता था, उसका एडिक्शन कभी नहीं हुआ। यानी ऑफलाइन वाले सारे गेम ये नॉन एडिक्टिव, या मैदान में खेलने वाले गेम अगर उसका एडिक्शन हो भी जाए तो अच्छी बात है ना। ग्राउंड पे जाएगा, हाथ पैर हिलाएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, भूख अच्छी लगेगी। इसलिए अभी आपके जनरेशन को ऑफलाइन वाले सारे गेम अलाउड, ऑनलाइन वाले नहीं, वो 60 के बाद। ठीक है, और कुछ, और कोई पूछना चाहेगा? हाँ बोलो। हाँ बोलो, बोलो, कैसे भी आप, इट इज योर चॉइस। पहले सवाल का जवाब, इन्होंने ये सवाल पूछा है कि जब क्लास में प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं, वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी थॉट प्रोसेस जो है वो अपनी मदर टंग में नहीं, इसलिए जब वो पढ़ा रहे हैं तो हम अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये एक प्रोसेस चलते रहती है। दूसरी बात, उसी समय दिमाग में दूसरे भी थॉट चलते रहते हैं तो पॉइंट मिस होगा जब सर पढ़ाते हैं उसको। काफी अच्छा सवाल है ये, बहुत किसी के साथ हो सकता है, जिनकी ग्रूमिंग मदर टंग में हुई है। ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मेरी जो ग्रूमिंग है ये मदर टंग में हुई है। मराठी मीडियम में पढ़ा, 12th इंग्लिश मीडियम था या बीएससी इंग्लिश मीडियम था, लेकिन भला ही इंग्लिश मीडियम था फिर भी मैक्सिमम लोग मराठी में बात करते थे, इसलिए वो चीजों में प्रॉब्लम आती थी। एक ही चीज ध्यान में रखो
कि इंग्लिश में जब भी वो टीचर बात करते हैं तो उसी भाषा में समझने की कोशिश करते जाओ। ये एक बात, प्रैक्टिस से वो जम जाएगा। ओके। और अगर अपना फोकस दूसरी चीजों में डाइवर्ट होता है, ये प्रॉब्लम है। अगर हम आइडल बैठे हैं, सर लेक्चर दे रहे हैं और हम सिर्फ सुनने का काम कर रहे हैं और सिर्फ आइडल बैठे हैं, तो फिर दिमाग में दूसरे थॉट चालू हो जाएंगे। इसको ओवरकम करने के लिए एक बात ये होती है कि जब टीचर पढ़ा रहे होंगे तो आप उनके ऊपर फोकस करके मेन पॉइंट्स ढूंढें और कीवर्ड्स लिखने की आदत डालें। जब वो पढ़ाएंगे और आप मेन पॉइंट्स, मेन कीवर्ड्स अपनी कॉपी में लिखते जाओगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, यानी दूसरे थॉट दिमाग में नहीं आएंगे और आप सब रखेंगे। बात आगे समझ, पॉइंट क्लियर हुआ? तो अब दूसरा सवाल कीजिए। अगर पैनिक अटैक खा रहे हैं तो उसकी जो भी कुछ वजह है वो ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, तो वो क्या है तो अपने सबसे सामने नहीं पूछ सकता हूँ वो चीजें, ये कॉन्फिडेंशियल होती है। मैं यही कहूंगा कि उसके लिए इंडिविजुअल काउंसलिंग कराओ। आप अगर क्लिनिक में आती हो ये सारी चीजें बताती है तो वो ओवरकम कैसे करते हैं ये मैं समझा पाऊँ। अभी पैनिक अटैक कंट्रोल करने के लिए जनरल फॉर्मूला सिर्फ इतना ही बताता हूँ, अपने आप को ये बताओ जो होगा देखेंगे। जब भी पैनिक अटैक आएगा, जब भी अंदर डर लगने लगेगा, किसी चीज का हार्ट बीट बढ़ने लगेगी, तकलीफ होने लगेगी, अपने आप को सिर्फ इतना बताओ जो होगा देखेंगे। इतना बताओगे तो पैनिक अटैक नहीं होगा। और अगर कुछ सीरियस प्रॉब्लम है तो आप क्लिनिक में आओ, मैं आपको बताऊंगा कैसे डील कर सकते हैं। और कोई एनी क्वेश्चन? थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir, for giving such a knowledge related to gap between generation and the approach to professional life and how to explore every field in life. I like to give a small quote on your address. शिक्षा नहीं बताती कि हमें क्या सोचना है, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे सोचना है। With this, now with gratefulness, I request Professor Anwane sir to present memento, shawl and shrikpur as token of respect to our guest. Thank you so much, sir. I invite Dr. Pooja Dawdi madam for vote of thanks. Good afternoon, everyone. Today, as we gather here to conclude this wonderful student action program, Day 2, Session 1, I am overwhelmed with a sense of gratitude and pride. On behalf of the faculty and staff of Shivaji Science College, I extend my heartfelt thanks to each and everyone who made this event a success. A very special thanks goes to Professor Raja Akash sir for his insightful session today. Your guidance and expertise has enriched our students' understanding and motivated them to take charge of their learning journey with confidence and responsibility. I would like to extend our deepest gratitude to our esteemed principal for your unwavering support and guidance throughout this induction program. I would also like to extend my sincere appreciation to Professor S.W. Anwani sir and our dedicated team of organizers who
who meticulously planned and executed this induction program. To our new students, I want to say that your presence brings a renowned energy to our campus. Your curiosity and eagerness to learn have already begun to infuse the air with excitement. I must acknowledge the efforts of our faculty members who will be guiding these young minds in the pursuit of knowledge. Last but not the least, I would like to thank our senior students, technical staff, and non teaching staff for your support. Thank you very much.